Hello and good evening, everybody. This is Soumyata Tiwari, and you're watching me here on Nation Talks, the Facts Intact. We are so delighted to have been able to launch the campaign, which is Education Awareness Campaign 2020, जिसमें हम बात करेंगे कई सारे एजुकेशनिस्ट से, जानेंगे उनकी राय और उसको पहुंचाएंगे आप सभी लोगों तक, ताकि आप भी समझ पाएँ कि एजुकेशन पॉलिसी जो न्यूली लॉन्च हुई है उसके बारे में कई सारी चर्चाएं बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर होती रही हैं, पर उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे उसी के अंदर पाए गए बहुत सारे तथ्य हैं जो जुड़े हुए हैं, पर लोगों को क्लैरिटी नहीं है। सो ये जो पूरा कैंपेन है ये सपोर्टेड है बहुत सारे एजुकेशनिस्ट के द्वारा, टीचर्स, प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं जो पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो इन 15 दिनों के कैंपेन में हमारे साथ जुड़ेंगे, आपसे और हमसे बात करेंगे और उनकी बातों से शायद हमें बहुत सारी ऐसी एस्पेक्ट्स पता लगेंगे जो अब तक हम आम जनता को नहीं बताते। तो यही हमारी उम्मीद है और यही हमारा प्रयास है इस कैंपेन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना सही बातों को सही तरीके से। सो आज दिस ओपनिंग व्हेन आई से अबाउट दिस कैंपेन, जिनके साथ हम इसको शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जिन्होंने कई सारे मतलब बहुत सारे कैंपेन्स खुद भी डिज़ाइन किया है और वो कन्वीनर रहे हैं, none other than Dr. Amit Dashora himself. So, can I have him on screen, please? Sir, very good evening to you. Namaste. Good evening. And welcome to जी हाँ, welcome to Nation Talks, the Facts Intact. ये एक Thank you. प्लेटफॉर्म है सर जहाँ हम कोशिश करते हैं आप ही की तरह कई सारे जो विचारक हैं हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर के भी, उनके साथ हम बातचीत करें और आम जनता की जो बातें हैं, आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम आए। इस बार हमारा कैंपेन है एजुकेशन को लेकर, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने इस चर्चा में भाग लेने के लिए अपनी धन्यवाद। एक स्वीकृति दी है। जी हाँ, जी हाँ, थैंक यू सो मच। एंड बिफोर आई स्टार्ट द टॉक शो, I would like to introduce Sir, who is a very prominent speaker, as well as just give me a second, sir. So when I talk about Dr. Amit Kumar Dashora ji, he is the National Co-Convener, Academic Cell, Bharatiya Shikshan Mandal. He has done his master's in human resource management, and he has also done his PhD from Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan. He has been the assistant professor in JRN Rajasthan Vidyapeeth University. Also, he was there with Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh. ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, and he has worked as a research assistant in ICSSR New Delhi. Presently, he is working as academic consultant in IGNOU New Delhi, which is present. He has also presented more than 30 research papers in national and international conferences, 10 such papers published in national and international journals, and he has edited some books also in that, and delivered more than 40 expert lectures on various platforms. His contribution has been there in organizing national and international level conferences, seminars, workshops, and webinars. So this is the brief of Dr. Amit Dashora ji. And I also have another guest of mine who is Assistant Professor Ankur Joshi, who is expert in himself. And welcome Ankur to this platform of Nation Talks. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर. Thank you for taking out time and addressing the issue जो education awareness को लेकर के है. So I'm thankful to you, अंकुर जोशी. और डॉक्टर अमित दशोरा जी के साथ बात शुरू करने से पहले I would like to introduce about Ankur Joshi also. Who is Ankur Joshi is assistant professor at Faculty of Management Studies, Banastali Vidyapeeth. He is a fellow of Management Development Institute MDI Gurgaon in Public Policy and Governance. In doctoral thesis in MDI, he studied the Gurukul system of education by experiencing the system from within. The suggestions were made for content and education curriculum to enhance the quality and outcomes of the education. His training in science and engineering helped in researching the phenomenon from a holistic perspective. Thereafter, he joined Banastali Vidyapeeth, one of the leading women's university, as we all know, for its unique model of education. There he is working currently.
and he has been involved in many academic projects at the university, wherein he is currently doing research with Omrise Research Group, formed at Banasthali in collaboration with Birdsrock and Pran Group from the Netherlands. He's also co-coordinator for the National Resource Center set up by MHRD, Government of India, for developing online refresher course in management. So these are certain projects which he is currently up to, and he has been managing those courses, and he is coordinating for the same. And he is also there for the National Foundation for Corporate Governance. This is also one of other projects where he is working. And then he is currently with working under the project which is of promotion of research in Indian management and ethos under Professor Harsh Purohit, who is Dean FMS Wisdom, Banasthali Vidyapeeth. So welcome, Ankur. And when I begin the talk show, I would like to bring on the topic which is more there when we talk about, सर NEP की बात करें, अगर आपसे शुरू करते हैं, अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे मेजर चैलेंजेस हैं जो हम सारे ही लोगों ने समझने की कोशिश तो की है, बट एक एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो पॉलिसी मेकिंग हुई है उसमें लगता है कि ये दिखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है, पर अगर हम उसको देखें, अगर हमको एक ही पॉइंट उसका लेते हैं कि अगर हमें ओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ करना है और एवरी वीक करना है, अगर इस तरीके से उसका आप चाहे, सो इट लुक्स लाइक अ वेरी बिग हर्क्यूलियन टास्क, सो उसको अचीव कैसे करेंगे सर? देखिए, ये डेटा जिस तरह से घुमाया जाता है ना, तो डेटा का खेल बड़ा खतरनाक होता है। अब इसको जैसे एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो एजुकेशन पॉलिसी बात कर रही है हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी खोलने का जी, और भारत में 739 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी। अब आपका पर वीक एक यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो एक साल में होते हैं 50 सप्ताह, बिल्कुल 50 सप्ताह और 15 साल की पॉलिसी है जी। हाँ, 50 सप्ताह और को 15 से आप गुणा करेंगे तो आएंगे 750 जी। अब भारत है ये, और ये नया भारत है, और क्या एक जिला इतना कैपेबल नहीं है कि यूनिवर्सिटी खोल सके? आसानी से खुल सकती है, और एक जिले को 15 साल में एक यूनिवर्सिटी खोलनी है। इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। अब ये कोई इंग्लैंड या इथियोपिया कोई या नाइजीरिया जैसा देश तो नहीं है, बहुत विशाल देश है, और इतने विशाल देश में एक डिस्ट्रिक्ट में आप एप्लीकेशन मंगवाइए ना यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए। मैं कहता हूं कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट से 4 एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे, तो इसका 4 गुना काम हो सकता है। इतना सक्षम भारत आज है। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस, बिकॉज ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन आया था काफी। ये बिना बात का क्वेश्चन है, इसमें कोई हरक्यूलियन टास्क लग रहा है, बड़ा अनअचीवेबल सा है। क्यों हरक्यूलियन? नहीं है कि ऐसा नहीं है, और अगर उसको सिस्टमैटिकली किया जाए तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में शायद उतना दिक्कत बहुत नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट को 15 साल में एक यूनिवर्सिटी खोलनी है या 10 साल में एक यूनिवर्सिटी खोलनी है, वो तो पॉसिबल है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आंकड़े वही बैठ। अच्छा सर, इसके अलावा इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है आपसे ही है, जो फंडिंग की बात आ रही है, जब आप यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं, आपके सामने कोविड का एरा जो चल रहा है, इतना पेंडेमिक सिचुएशन, उसमें हम फंडिंग, जहां हमें करंट इश्यूज हेल्थ केयर को एड्रेस करना है, दूसरे इकोनॉमिक रिकवरी के दौर से गुजर रहा है पूरा देश ही नहीं, इंटरनेशनली आल्सो एवरी कंट्री, ऐसी स्थितियों में हम फंडिंग इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से देखिए, फंडिंग 6% जीडीपी का 6% जीडीपी का फंडिंग एजुकेशन को होगा, ये बात पॉलिसी कर रही है ना? दूसरा, जो कोविड का बहाना बनाया जा रहा है कि कोविड आ गया है तो फंडिंग कैसे होगी जी, तो कोविड का तो केवल जब तक वैक्सीन आने तक है। पॉलिसी जो बनती है देश के 50 साल, 60 साल, 100 साल को देखकर बनाई जाती है जी। तो हेल्थ केयर अपना काम करेगा, एजुकेशन अपना काम करेगा, एनवायरमेंट सेक्टर अपना काम करेगा। ऐसा थोड़ी कि पोल्यूशन बढ़ रहा है तो हेल्थ केयर अपना काम करना बंद कर देगा। तो एजुकेशन सेक्टर जो है वो अपना काम अपने तरीके से करेगा। दूसरा, यूनिवर्सिटीज जब खुलती हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं, कम नहीं होती। कंस्ट्रक्शन होगा, बहुतों को रोजगार मिलेगा, बहुतों को
इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, रिसोर्सेज प्रोवाइडर्स को रोजगार मिलेगा, उससे उद्यमों को फायदा होगा। तो यूनिवर्सिटी से भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। Very rightly said, because ये दो major points थे which I wanted to make clear from your end. So thank you for clarifying it for everybody actually. ये बहुत major points थे। और दो बातें और कहना चाहूंगा मैं। जी हाँ जरूर। दो बातें और कहना चाहूंगा। पहली बात, पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि देश की जनता ने नीति बनाई है। 1 लाख गांवों में नीति के ऊपर डिस्कशन हुए। तो जनता ने इस बार देश को दिखाया है कि वो केवल नेता ही नहीं दे सकते, वो नीति भी दे सकते हैं। दिस इज द नीति ऑफ पब्लिक, दिस इज नॉट द नीति ऑफ पॉलिटिशियन और पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, दिस इज द नीति ऑफ इंडियन पब्लिक, भारतीय जनता। सेकंड, जो भी डिस्कशन हो रहे हैं वो पॉलिसी पे नहीं हो रहे हैं। पॉलिसी को सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे जिस विचारधारा के लोग। बात जो हो रही है वो इम्प्लीमेंटेशन पे हो रही है। जी हाँ सर। और इम्प्लीमेंटेशन पे जब बात होती है तो जो भी सजेशन आते हैं वो सभी कंस्ट्रक्टिव होते हैं। तो बहुत कंस्ट्रक्टिव है, सभी पूरे देश का इसमें साथ मिल रहा है। 1 लाख गांवों ने जब अपने सजेशन दिए हैं, उनका इसके अंदर हमने सरकार ने इस नीति के अंदर उन सजेशंस को लिया है। तो ये जनता की नीति है, ये सरकार की नीति नहीं, जनता की नीति। जी हाँ जी हाँ। एंड कमिंग टू द सेम पॉइंट टू अंकुर, आपकी क्या राय है अगर हम बात करते हैं NEP 2020 की? आप एजुकेशन फील्ड में ही हैं, आप विमेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आप इस चीज़ को किस रूप में ले रहे हैं कि ये जो एक चुनौतीपूर्ण बात आई है, इसमें जिस तरीके की बात की जा रही है कि बहुत ही एक लार्ज पूल ऑफ ट्रेन टीचर्स रखना पड़ेगा अंकुर, आपको क्या लग रहा है? आई मीन, इज दैट समथिंग विच इज़ अचीवेबल? और इस तरह से इतने सारे टीचर्स को ट्रेन करना, फिर उनको कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में भेजना, ये सब कुछ आपके एंड से आपको क्या लग रहा है, हाउ इट्स गोइंग टू वर्क? जी नमस्कार। हाँ, आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ, थोड़ी सी धीरे आ रही है आपकी आवाज़, बाकी आ रही है। अच्छा, अभी बेटर है थोड़ी सी? हाँ ठीक। ओके। हाँ, जी, नमस्कार और थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि लार्ज पूल ऑफ टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, रिक्वायर्ड रहेंगे आने वाले समय में। सो अगर आप पिछले कुछ समय में देखें तो ऑलरेडी उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक सडनली वैक्यूम होगा जो हमको फुलफिल करना पड़ेगा। और अभी आप देखेंगे कि जो एक गवर्नमेंट का स्वयं इनिशिएटिव था जिसमें कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से जी इतने थाउजेंड्स ऑफ जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए तो वो है ही अवेलेबल, लेकिन पिछले 2 साल से एक एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग जो हायर एजुकेशन के लिए स्टार्ट हुआ था अर्पित नाम से। तो उसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, रिफ्रेशर प्रोग्राम्स होने लगे हैं। AICET और अर्पित वो रेगुलरली फैकल्टी मेंबर्स को ईमेल आते रहते हैं जहाँ पे वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं। तो पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि टीचर्स को छुट्टी लेकर कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाना पड़ता था। तो लेकिन लास्ट 2-3 इयर्स में प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ऑनलाइन मीडियम के थ्रू रिजॉल्व करा गया है। और ना सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से, कुछ जो डेडिकेटेड और स्पेशल ट्रेनिंग होती है, तो जो पंडित मदन मोहन मालवीय प्रोग्राम है टीचर ट्रेनिंग का, उसके थ्रू भी यूनिवर्सिटीज़ में सेंटर्स बनाए गए हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। बनस्थली में भी नए प्रोग्राम्स और ऐसे देश भर में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी वो मैकेनिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सेट है उसके लिए। सो वो एक चैलेंज नहीं होगा। और दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं उनका अब टीचिंग में इंटरेस्ट बढ़ रहा है जी और जो एक हमको गैप फील होता था वो थोड़ा फुलफिल भी होने लगा है और लोगों का इंटरेस्ट एजुकेशन एज ए फील्ड में बढ़ने लगा है क्योंकि इसमें भी अब नई नई चीज़ें से डायनामिज्म आ रहा है। जी हालांकि जो क्वालिटी एनहांसमेंट है वो तो एक तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम अब अपने आप को 2 साल से कंपेयर करेंगे तो आज बेटर पाएंगे, अगले 2 साल में हम आज से बेटर पाएंगे। तो वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और एजुकेशन में चलती रहती है। लेकिन जो एक इनिशिएट उसको कर दिया गया है और उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क अब नहीं रहेगा, वो इम्प्लीमेंटेबल है।
और पॉलिसी में भी इसको लेकर, टीचर ट्रेनिंग को लेकर, कोलैबोरेशन को लेकर, ट्रेनिंग सेंटर्स के कोलैबोरेशन को लेकर बहुत यूनिक पॉइंट्स हैं, जिसमें कि एक हर यूनिवर्सिटी को मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनाने की बात है। तो जब ऐसा होने लगता है तो वो अपने आप से एक टीचर के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे कि वो अपनी ट्रेनिंग का ध्यान रख सके। Right. Rightly said. And this is something which is a very positive approach if we look at it that way, because बहुत सारे, जैसे हम, वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है मेरा उसी पर ही था कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, दैट आई अगेन कम टू अंकुर, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क अमित सर अबाउट ये जो हायर एजुकेशन का जो डिमांड है, जिसमें कहा जा रहा है कि कल्चरल शिफ्ट जैसा होगा, और दूसरा एक छोटा सा प्रश्न था आपसे कि जो एम्प्लॉयबिलिटी की जो वैल्यू है ऑफ ओपनिंग अप द लर्निंग स्कूल्स या कोर्सेज, आप लोग जो खोलने की बात हो रही है कि ओपनिंग अप ऑफ लर्निंग कोर्सेज, सो इज देयर एनीथिंग, जैसे जो लर्निंग कोर्सेज होने वाले हैं शुरू, उसके अंतर्गत कुछ एम्प्लॉयबिलिटी का भी फैक्टर रखा गया है ध्यान उसमें, या फिर एम्प्लॉयबिलिटी का ध्यान केवल हायर एजुकेशन में ही नहीं, स्कूल एजुकेशन में भी रखा गया है। तो छठी क्लास से उसका शुरुआत हो जाएगा। तो कैसे एक एम्प्लॉयबिलिटी स्टूडेंट की बढ़े, वो कैसे एक सक्षम नागरिक और आत्मनिर्भर नागरिक बन सके, इसके लिए पूरी नीति में बहुत सारे प्रावधान। तो स्किल डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा होने वाला है। अभी 5% है, और अगर आप नेस्डॉक के उनकी डेटा अगर आप देखें तो एम्प्लॉयबिलिटी अभी की तो हालत आपको पता ही है। हाँ, अभी का तो 7% से 50%, 15% के बीच का एक डेटा आता है। और एम्प्लॉयबिलिटी की एजुकेशन भी, अब आप वोकेशनल एजुकेशन को देखिए तो उन्हें इंफीरियर माना जाता है, और उनके लिए हायर एजुकेशन में कोई जगह नहीं है। हायर एजुकेशन में कैसे वो शिफ्ट करेगा, फिर वो नॉर्मल कोर्सेज में आता है। तो सारी जो समस्याएं थी उनका समाधान इस नीति ने कर दिया है। और जो भी एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस इसमें रखा गया है वो बहुत क्लियर है। तो इतनी सरल भाषा और इतनी क्लैरिटी से हर चीज लिखी गई है कि बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो लोगों को कुछ, जी हाँ, बिकॉज मेन कंसर्न वाज इट हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस, उसका जो इम्प्लीमेंट के बाद इम्प्लांटेशन, उसमें क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर और बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, इंटरनेशनल लेवल्स पर भी बहुत इसको प्रॉमिसिंग ही नहीं लग रहा है, ये कैपेबल भी है। कैपेबिलिटी है इस देश की कि आसानी से ये नीति लागू हो सकती है। जी क्योंकि इतना जन सहयोग साथ में है, इतने एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, और सभी के मन की भावना है, ये सभी की आत्मा चाहती है कि भारत की शिक्षा नीति अच्छी बने। तो इसमें अगर, जी हाँ, अगर हम चिल्ड्रन और फैमिलीज उनकी बात करें, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेजेस के ऊपर भी थोड़ा, इसमें आप लोगों ने जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने हाईलाइट किया है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू स्कीम, इंग्लिश विल ओनली बी ऑफर्ड फ्रॉम द सेकेंडरी लेवल। सो सर, इसको आप थोड़ा, ये कहाँ लिखा है, या कहाँ लिखा है कि इंग्लिश सेकेंडरी लेवल पे ही ले सके? इट इज नोवेयर। It is not. It is nowhere. Okay, thanks for correcting. Then there is more thing. तीन लैंग्वेजेस की बात है, तीन लैंग्वेजेस की बात है। स्टूडेंट के पेरेंट्स अगर चाहते हैं तो पहली क्लास से इंग्लिश की शुरुआत हो सकती है, शुरू से हो सकती है। 3 लैंग्वेजेस कोई सी भी ले, उसमें एक मदर टंग है तो 2 लैंग्वेज वो इंग्लिश ले सकता है या और कोई लैंग्वेज ले सकता है। Okay. So when we talk about languages, I'll again come to Ankur, because he being PhD from that area, and he can also highlight about the same. Because when we are saying कि हम लोग संस्कृत को मेन स्ट्रीम में लेकर के आएंगे, so मैं उस चीज़ को हटा रही हूँ, because Ankur would be the right person, I think, because when you say that the mainstreaming Sanskrit in India would be synonymous to the West mainstreaming Latin. So Ankur, how much do you agree on this particular aspect of ours when we just got to know, because संस्कृत आज आप देखिए तो आम जनता की वैसे भाषा नहीं रही है। लैटिन आई अंडरस्टैंड एज यू सेड कि डेड लैंग्वेज है, बट संस्कृत सही बात है आज भी जीवित है हमारे शास्त्रों में, हमारे श्लोक और वेदों में। बट जहाँ बातचीत की बात आती है, जहाँ हम एक दूसरे से बात करते हैं, वार्तालाप होता है या फिर चर्चा, तो हिंदी या फिर इंटरनेशनली इंग्लिश। अब ऐसे में अगर आप संस्कृत को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक चैलेंजिंग बात नहीं होगी। अंकुर, आप क्या बोलेंगे? हाँ, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि संस्कृत को एक हमने भाषा की तरह लेना शुरू कर दिया।
तो सबसे पहली बात तो वो जो कंपैरिजन है संस्कृत का किसी भी एक मैनिफेस्टेड लैंग्वेज के साथ, तो वो ही अपने जी आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि संस्कृत और संस्कृति ये जो दो शब्द हैं उनका जो मीनिंग होता है वो कि जो समय के साथ परिष्कृत हुई है, यानी विच इज एवर इवॉल्विंग, और जो रिफाइन होती जा रही है समय के साथ साथ। राइट और जो दूसरी बात आपने कही कि संस्कृत भारत में बोली नहीं जाती, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जी संस्कृत सिर्फ जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वही संस्कृत नहीं है। भारत की जितनी भी बोलियां हैं, जितने भी डायलेक्ट्स हैं, जितनी भी दूसरी भाषाएं हैं, वो आप देखेंगे वो संस्कृत ही है एक तरह की। अब जी आप अगर तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है अवधी भाषा में, वो संस्कृत ही है, क्योंकि उसके अंदर जो एक राइमिंग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो एक सिमेंटिक है, तो हर वो राइट भाषा जो इस बेस को फॉलो करती है वो संस्कृत से ही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द, बहुत सारा स्ट्रक्चर संस्कृत से ही निकल के हर भाषा में आता है। और इनफैक्ट एक जो बात है, जो हम हिंदी जिसको अभी इस समय बोल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा संस्कृत से दूर होती जा रही है जो हम बोल रहे हैं। और जो भारत की जितनी भी बाकी मदर टंग हैं, उनमें संस्कृत का बहुत ज़्यादा समावेश है। अब हमने ये पिछले कुछ समय में अपनी हिंदी को संस्कृत निष्ठ नहीं रखा, लेकिन फॉर्चुनेटली भारत की जितनी भी बाकी भाषाएं हैं, आप उड़िया, तमिल, गुजराती, मराठी, जो भाषाएं आप लेना चाहें, उनमें वो संस्कृत की फिलोसॉफी, आइडियोलॉजी इनग्रेन्ड है। हमने हिंदी में, अब हम हिंदी में अंग्रेजी के शब्द, उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, तो हिंदी में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, लेकिन भारत की सभी भाषाएं अपने आप में संस्कृत ही है। और जो एक डेड लैंग्वेज और कम लोग बोलते हैं, इसका जो एक बहुत बड़ा मिस, वो भी एक समझने की बात है कि जी अ, कोई भी भाषा में 3 एस्पेक्ट होते हैं, रीड, राइट एंड स्पीक। तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो संस्कृत में एग्जैक्टली बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उसको एज अ नॉलेज रिसोर्स आज भी बहुत सारे लोग कोट करते हैं, यूज करते हैं। आप IIM इंदौर के जो अभी करंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने जी कभी इंटरव्यू में दिया था कि उन्होंने अपनी रिसर्च में संस्कृत को यूज किया था और वहां से नॉलेज को ड्रॉ किया था। तो आज भी आप इतने सारे ग्रंथ हैं जो प्रैक्टिस में हैं। देश में 1200 से ज्यादा 13 गुरुकुल हैं जहाँ पे अभी पढ़ाई जा रही है, पढ़े जा रहे हैं। तो संस्कृत चार एज अ हजार से ज्यादा। जी सर, 4,000 से ज्यादा है। 4000, सो आई जी एम करेक्टेड हियर। तो वहाँ 4000 से भी ज्यादा, और ये अभी डेटा और भी बढ़ सकता है जैसे जैसे और स्टडी होगी और गुरुकुल निकल के आएंगे। तो वहाँ पे ये पढ़ी जा रही है, बोली जा रही है, इतने बुक्स इसमें पब्लिकेशन में हैं, इतने विद्वान हैं इसके। अब डे टू डे उसमें कन्वर्सेशन में हम कौन सी भाषा यूज करते हैं वो बहुत इररिलेवेंट हो जाता है, जब इसका नॉलेज उसको जब यूज में आता है। और एक जो डिस्कवरी चैनल ने या नेशनल ज्योग्राफिक है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, मिशन मंगल के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वहाँ पे एक इसरो के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कोट किया है कि जब वो मंगलयान को हमको डिटेक्ट करना था, तब आर्यभट्ट के ज्योतिष के कॉन्सेप्ट से हमने उसकी मैपिंग की थी। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो अब ये नॉलेज सोर्स जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तब एज अ नॉलेज सोर्स, आज मुझे संस्कृत भले ही नहीं आती हो, मैं उतना बोलने में उसमें फ्लुएंट ना हूँ, लेकिन एज अ नॉलेज सोर्स मुझे उसको रेफर करना पड़ता है, तब वो उसका बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो लैंग्वेज को सिर्फ बोलने के तक रेस्ट्रिक्ट ना रख के उसके जो अलग अलग डायमेंशंस हैं उससे भी कनेक्ट करना चाहिए। और एक लास्ट बात है, एक जो ब्रेन के साथ उसकी जो फंक्शनिंग है, एक मानेसर में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे उन्होंने एक रिसर्च की थी कि कैसा जो स्क्रिप्ट होती है, लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट होती है, उसका ब्रेन की फंक्शनिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो कर्विलिनियर स्क्रिप्ट होती है, जहाँ पे कर्व्स भी होते हैं, लाइंस भी होती हैं, वो पढ़ने और समझने से ब्रेन में जो कॉर्टिकल एक्टिवेशंस होते हैं, जिसको एक लोकल भाषा में हम कहेंगे कि दिमाग की बत्ती जलना, वो
होलिस्टिक तरीके से ब्रेन के सभी हिस्सों में एक्टिवेशंस होते हैं जब कोई संस्कृत, हिंदी या अपने देश की जो देवनागरी स्क्रिप्ट है या जो कर्विलीनियर स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने से। तो भले ही संस्कृत ना आए, उसको पढ़ने से भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता रहता है। तो इसके हाँ मेंटल तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो संस्कृत के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी हाँ, जरूर डॉक्टर अमित। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। एक तो वृहद परिप्रेक्ष्य में संस्कृत के बारे में अंकुर जी ने बताया, लेकिन अगर भाषा के रूप में भी देखना हो तो एकेडमिक्स जो है वो परवाह इस बात की नहीं करती कि संख्या कितनी है। एकेडमिक इस बात की परवाह करती है कि वैज्ञानिकता कितनी, और दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा, अगर भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी अगर देखें तो संस्कृत इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अब संख्या अगर कम है इसके लिए विज्ञान छोड़ देंगे? गणित पढ़ने वाले कितने लोग हैं हायर एजुकेशन में, तो क्या गणित हटा देंगे? या हम वो जो बिग बैंग का एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको करने वाले साइंटिस्ट कितने हैं? कुछ हजार तो नहीं होना चाहिए? संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है। एकेडमिक्स जो परवाह करता है वो वैज्ञानिकता की करता है। यहाँ चुनाव नहीं करवाना है कि जिसके पास वोट ज्यादा होंगे उसको रखा जाए। एकेडमिक्स बात करेगा जो वैज्ञानिक है वो रहेगा, और जो वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है वो रहेगा, और वही रहना चाहिए। तो संस्कृत जब दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा है, तो जो विज्ञान की पैरवी करने वाले और रैशनैलिटी की पैरवी करने वाले लोग सबसे पहले आके विरोध में खड़े हो जाते हैं संस्कृत। वही बात हो रही थी कि अगर हम लोग इंग्लिश संस्कृत, हाउ कैन वी लीव संस्कृत? और और कंपल्शन नहीं है, और कंपल्शन नहीं है नीति में कि संस्कृत पढ़नी ही पढ़नी, ऐसा कंपल्शन कहीं नहीं है। दिस विल बी offered, this will be offered. Okay, so it will of course it will open up other source of avenues for जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने संस्कृत में जो परस्यू करना चाहते हैं अपना करियर, उनके लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी शायद, मुझे लगता है इसके थ्रू। आई बिलीव अगर संस्कृत को प्राइमरी एजुकेशन से ही हम लोग ऐड करेंगे तो डेफिनेटली कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होने वाली है संस्कृत से। पर सर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होने वाली है। जी हाँ, जी हाँ। और इसमें एक ये बात है कि कहीं इसमें हम लोग इंग्लिश को, लोगों को ये भी है कि जैसे अभी तक इंग्लिश का ही सारे स्कूल्स हो गए, शायद प्राइमरी स्कूल से लगाकर आप हायर एजुकेशन तक देख लीजिए, इंग्लिश चूंकि इंटरनेशनली एक्लेम्ड लैंग्वेज है और वही सब जगह सारे देशों में चलती है, तो उस वजह से लोगों को लग रहा है कि कहीं हमारे करियर्स जो हैं बच्चों के वो अफेक्ट तो ना होंगे अगर हम हिंदी और संस्कृत भाषाओं को, जो कि ज़्यादातर भारत में ही और भारत से जुड़े थोड़े बहुत देशों में बोलनी या समझी जाती हैं, तो वहाँ तक अगर रेस्ट्रिक्ट करते हो इंग्लिश को, अगर साइडलाइन होती है इंग्लिश, तो कहीं हमारे बच्चों को आने वाले समय में एम्प्लॉयबिलिटी से लड़ना पड़े, अनएम्प्लॉयबिलिटी उनको फेस करना पड़े। व्हाट आर दी थिंग्स इन योर माइंड? दो तीन विषय हैं। एक तो ये सर्वमान्य सत्य है कि जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं, चाहे आप जापान लीजिए, जर्मनी लीजिए, इटली लीजिए, फ्रांस लीजिए, रशिया लीजिए, चाइना लीजिए, सभी ने अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रधानता दी। सभी का एजुकेशन सिस्टम उनकी लोकल लैंग्वेज पे बेस्ड। दूसरी बात, लैंग्वेज लर्निंग आसानी से हो जाती है। यदि एक भाषा पे किसी की अच्छी पकड़ है तो वो दूसरी भाषा आसानी से सीख लेता है। बहुत सरल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे यहाँ से एमबीबीएस करने के लिए कई विद्यार्थी रशिया जाते हैं या आसपास के देशों में जाते हैं, और वहां वो 6 महीने में रशियन सीख लेते हैं, और उसमें वो मेडिकल की पढ़ाई कर लेते हैं, उसकी इंग्लिश के वर्ड हमें नहीं पता। तो भाषा सीखना बहुत आसान होता है यदि एक भाषा अच्छे से आती हो, और प्रारंभिक जो शिक्षा है वो यदि मातृभाषा में होती है तो बहुत आसानी से उस पर बात हो सकती है। दूसरा, इंग्लिश को कहीं भी साइडलाइन नहीं किया जा रहा है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मातृभाषा रहेगी, लेकिन संस्कृत भी सिखाई जाएगी, सॉरी इंग्लिश भी सिखाई जाएगी। इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट के रूप में रह सकता है यदि विद्यार्थी। सारे सर, अगर करंटली हम लोग ये बात देखते हैं तो आप देखिए कितने सारे चेन्स ऑफ स्कूल हैं व्हिच आर फुल्ली इंग्लिश मीडियम ओनली, एंड लोगों की भी जो मानसिकता
सालों से बनी है, उसमें भी एक प्रश्न चिन्ह है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अलग एटीट्यूड है और उनका खुद का भी अपने ऊपर एक अलग एटीट्यूड था, तो वो शायद ब्रेक करके एक नई चैलेंजिंग जो पॉलिसी आई है, व्हिच आई पर्सनली, इफ आई यू हैव टू आस्क मी, आई रियली अप्रिशिएट देखिए, दैट, हम बट बहुत शिक्षा सारे के क्षेत्र में पेरेंट्स काम के करते दिमाग में हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, कई वर्षों तक अध्ययन अध्यापन का काम भी किया है। और एक बात बहुत जनरली ऑब्जर्व करी है कि अ, भाषा पे जब इंग्लिश थोपी गई है जबरदस्त, मैं थोपने की बात कर रहा हूँ, तो उस स्थिति में विद्यार्थियों का ये हाल हुआ है कि उनको ना तो इंग्लिश ठीक से आती है, ना हिंदी ठीक से आती है। मैनेजमेंट का कोर्स भी हमें पढ़ाना हो, इंजीनियरिंग का कोर्स भी हमें पढ़ाना हो, तो हमें कक्षा में हिंदी में ही पढ़ाना पड़ता है, तो उनको ठीक से समझ में आता है। वो प्रश्न उत्तर चाहे अंग्रेजी में लिख लेंगे, लेकिन जब समझने की बात आती है तो वो मातृभाषा में ही ठीक से उसको समझ पाते। तो बहुत वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिकता की हमें परवाह करनी है, लोगों की भावनाएं क्या है वो एक विषय है, लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टि से उन चीजों को समझाया जाएगा तो लोग आसानी से समझेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन अंकुर, कुछ भी आप क्या इस साइंटिस्ट है, विषय में कुछ बोलेंगे? भी जी साइंटिस्ट जी हाँ सर। एंड अंकुर, इफ आई हैव टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन, हालांकि आपने हाईलाइट किया था, पर अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर जाते हैं, so what kind of challenges one has to face in terms of changing सारे schools का जो पूरा फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाएगा इसमें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्कूल्स थे उनको भी हिंदी और संस्कृत को उतना ही महत्व देना पड़ेगा। सो आपको क्या लग रहा है? यू आर देयर इन बनस्थली विद्यापीठ, आपकी क्या इस विषय में ओपिनियन है? हाँ, इसमें अमित जी ने तो बहुत ही सारे पॉइंट्स ऐसे क्लियर कर ही दिए, लेकिन एक जो जी हाँ बहुत जी। खास बात है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार देश में इस चीज़ को कोई पुश किया जा रहा है। इनफैक्ट आप पास्ट से भी देखते आए, जो 1930s में सप्रू कमेटी बनी थी, उसके बाद जाकिर हुसैन कमेटी बनी थी, संस्कृत कमीशन बने थे, और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, और इनफैक्ट 2005 में जो आया था, उस समय जब यूपीए की सरकार थी, तब उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि इंटरफेयरिंग, अगर हम जो चाइल्ड है उसको उसकी मदर टंग में पढ़ाते नहीं हैं, तो इट इज इंटरफेयरिंग विद द सेंस ऑफ सेल्फ। ये उसने 2005 में भी बोला था। और तो मतलब ये पिछले 70-80 साल से गवर्नमेंट और मतलब नॉन गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब हर ऑलमोस्ट जमीन से उठी हुई आवाज है कि जो पढ़ाई है वो मदर टंग में होनी चाहिए। और जैसा अमित जी ने अभी बताया ही कि उसमें किसी को कोई सी भी भाषा पढ़ने से किसी को रोका नहीं गया है। 10 भाषाएं सीखे, 50 भाषाएं सीखे, लोग मल्टीलिंगुअल हाँ, होते हैं। उस पे कोई रोक नहीं है, हाँ, डेफिनेटली यू तो जो एक कैन बहुत डिफरेंस समझने की जरूरत है कि लर्निंग इंग्लिश और लर्निंग इन इंग्लिश, तो ये डिफरेंस समझ में जब आ जाए तो बहुत अच्छा से रहेगा। और जी। एक इसमें दूसरा है कि एक और एस्पेक्ट भी है कि जब बच्चे जो होते हैं, खासकर जो 5-6 साल की उम्र में जब वो फर्स्ट क्लास में स्कूल में आते हैं, या उससे पहले भी आजकल तो 3-4 साल में ही आ जाते हैं, तो होम लैंग्वेज एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज होता है, होम लैंग्वेज। मदर टंग तो इम्पोर्टेंट है ही, मातृभाषा, एक होम लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है बात करने के लिए, कि बच्चा जिस आसपास के एनवायरनमेंट में, जिस सोसाइटी में पला बड़ा है, वो वहां पे रोज कौन सी भाषा सुन रहा है, तो 3 साल 4 साल तक उसने वो सब शब्द सुने होते हैं जो वहाँ की होम लैंग्वेज में यूज होते हैं। अब वो अचानक से उसने वहाँ पे सुना है केला, वहाँ पे उसने सुना है कि जी हाँ सेब जी। फल, और उसने सुना है अंगूर, चावल, दाल, और वो जैसे ही स्कूल में जाता है वहाँ पे उसको बोलते हैं दिस इज राइस, दिस इज व्हीट, दिस इज बार्ले। अब वो वहाँ पे उस समय उसके ब्रेन में उसको अननेसेसरी डबल प्रोसेसिंग करना पड़ती है, जो मेमोरी और जो शब्द के उसके दिमाग में जो इमेजेस बनी है, तो ये उस समय उस बच्चे की लर्निंग को धीरे कर देता है। लर्निंग की पेस बच्चे की धीरे हो जाती है जब वो होम लैंग्वेज में नहीं सीखता है। और इनफैक्ट मेरे जो सर थे एमटीआई गुड़गांव में, मेरे जो जी। पीएचडी सुपरवाइजर थे, वो हमेशा एक बात मुझे कहते हैं कि तुम्हारी थीसिस के समय मुझे एक बात रियलाइज हो रही कि एक समय ऐसा आया था जब मैं सोचने इंग्लिश में लग गया था, और फिर मुझे लगा कि दिस इज आई एम गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ। तो बोले मुझे उसको ठीक करने में बहुत समय लग गया। तो बहुत सारे लोग हैं
जो किस भाषा में सोचते हैं, तो हमारी जब ये ऐसा मिक्सचर क्रिएट हो जाता है बच्चों को घर में, उनको होम एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में अलग भाषा चल रही है, स्कूल में वो अलग भाषा में पढ़ते हैं, तो अलग उनकी बात है। लर्निंग का पेस है वो धीरे हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को फेस करना पड़ती है उनके अर्ली फेजेस में। और एक इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है डिसोनेंस, उनका एक कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है, और ब्रेन जो है वो बेचारा लुकअप टेबल क्रिएट करता रहता है, जैसे प्रोग्रामिंग में और बोला जाता है लुकअप टेबल। तो वो बेचारा क्रिएट करता रहता है कि ए इज दिस, और फिर वो एक टेबल, फिर उसका मीनिंग, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन। तो उसके दिमाग में अननेसेसरी की स्पीड डिले हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ये बहुत ही रूट की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये सामाजिक स्तर से लगा करके तो प्रोफेशनल लेवल तक ये एक बहुत ही मेजर चेंज की ज़रूरत है, बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है। सोसाइटी की फ्रेम जो माइंडसेट बनाया गया है इतने सालों से जो चल रहा था, उसको ब्रेक करके और फिर नए सिरे से ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो। दैट्स व्हाट आई थॉट, ये अमित जी इसके ऊपर थोड़ा और हाईलाइट कर सकते हैं, बिकॉज़ इस तरह से लोगों के विचार आप और हम चूँकि सामाजिक जो हमारे भारतीय समाज में जिस तरह से मानसिकता बनाई गई, पहले तो ये बनाई गई थी, अब उसको हमको अनलर्न भी हमें ही करवाना है। सो एक जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, सबके लिए ये एक चैलेंजिंग रहेगा शायद मामला, बट लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि हमें बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स इससे देखने को मिलेंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम एश्योर्ड ऑफ। जी, बिल्कुल मिलेंगे, जी हाँ। क्योंकि भाषा जो है वो ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए होती है, ज्ञान के प्रकटीकरण के लिए होती है, बातचीत करने के लिए होती है, अपनी बात को समझाने के लिए होती जी हाँ। है। और जबरदस्ती एक बात घुसी गई दिमाग में कि अंग्रेजी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मतलब उससे आप क्या स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, आप बहुत महान कहलाने लगते हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में जिस भाषा में हम लोग अपनी बात समझा सकते हैं, सामने वाले को भी समझ में आनी चाहिए। हाँ, सही बात है। दूसरी बात, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बहुत पिछले 70 सालों से इंग्लिश इस तरह से आई है। आपने भी पढ़ाई करी होगी, अंकुर जी ने भी करी होगी, मैंने भी करी है। हमारे बचपन में हिंदी मीडियम चल रहा था, आराम से चल रहा था, और हाँ, दैट मैक्सिमम इज़ स्कूल्स में हिंदी मीडियम ही था। जी, हिंदी मीडियम या जो भी प्रांतीय मीडियम है। और आज भी कई स्टेट्स में आप जाइए, आपको आसानी से वहाँ की प्रांतीय भाषाओं में पढ़ाने वाले स्कूल्स मिलेंगे। मिल तो जाएंगे वो टीचर्स कुछ ना, डेफिनेटली। वो कुछ जाएंगे। कोई बहुत बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ है, ये नीति उसे संभाल लेगी जो हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। सर एक टेक्निकल कुछ क्वेश्चन है इसके बाद में, हाँ, उसके बारे में आपसे पूछना है। लाइक देयर इज़ अ स्विच फ्रॉम 10+2, जैसे हम लोगों ने जो हमारे हाँ, सामने आया है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू हम्म, और नॉट, बट इट सेज हम्म, दैट एक स्विच है फ्रॉम 10+2 टू 5 हाँ, प्लस 3 प्लस 3 प्लस हम्म, 4। इसका हम्म। मीनिंग क्या है? इट्स स्कूलिंग से रिलेटेड है ये। सो ये एक थोड़ा आप अगर क्लैरिटी दे पाएँ। तो पहले जो पॉलिसी में जो इंक्लूडेड था, वो पहली जी, क्लास से 12वीं क्लास तक की हम बात करते थे। लेकिन बहुत जी, सारे ऐसे प्री स्कूल्स भी शुरू हुए हैं पिछले कई सालों में, आंगनवाड़ियां चल रही हैं। जी हाँ, तो उनमें स्कूलिंग से पहले की पढ़ाई होती है। अलग अलग कक्षाओं के नाम होते हैं, कहीं एलकेजी, यूकेजी इस तरह से, या कहीं यूकेजी, बाल वाटिका, जो भी जी हाँ, अलग वहाँ अलग मिल जगह अलग तरह के नाम मिल जाते हैं। तो जी, उनको भी इस पॉलिसी में लिया गया है। तो शुरू के 3 साल, है ना, 3 वर्ष की आयु से 5 वर्ष की आयु तक के 2 साल, उसके बाद 1 साल। वो 1 साल है प्री स्कूल के लिए, बाल वाटिका के नाम से या किसी और नाम से प्री स्कूल के लिए होगा। स्कूल में एंटर होने से पहले कितनी प्रिपरेशन होनी है। और जी उसके बाद के 2 साल, यानी कि 0 से लगा के 5वीं क्लास तक, ये शुरू के 5 साल। 5वीं क्लास नहीं, 3 साल शुरू के स्कूल से पहले के, और 2 साल जी, पहली और दूसरी, तो ये 5 साल। उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 3 साल। छठी, सातवीं, आठवीं, ये 3 साल। फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 साल। ओके, तो 10+2 को और अधिक वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक किया गया है। जो एज के डेवलपमेंट होते हैं, उसको और देखते हुए। पर्टिकुलर एज में चाइल्ड
कि जिस तरह के उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और उसके मोटर एक्टिविटीज और वो सारा उसका सीखना होता है, उसकी लर्निंग के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से कैरिकुलम ठीक से डिजाइन हो, उसके हिसाब से पढ़ाई ठीक से हो, इसलिए 5+3+3+4 किया गया है, जो बहुत वैज्ञानिक, बहुत वैज्ञानिक। बिल्कुल, थैंक यू फॉर क्लियरिंग, आपने इसको क्लियर किया, ये एक मेजर क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू द ऑनलाइन क्लासेस का ये जो सारा कुछ चल रहा है काफ़ी टाइम से, टू बोथ ऑफ यू आई वुड लाइक टू आस्क, सारा चीज़ें ऑनलाइन हो रही है पिछले 3 या 4 महीने से ज़्यादा अब हो जाएगा, और शायद अभी काफ़ी लंबे समय तक इस तरह से ये चलेगा बच्चों के लिए भी। सो हाउ डू यू टेक दैट थिंग, लाइक अंकुर बीइंग देयर इन द यूनिवर्सिटी, आपको क्या लग रहा है? पहले इतनी ओपनिंग अप ही नहीं थी, इन बातों को लेकर के इतना स्वीकार नहीं कर रहे थे शुरू में सभी लोग, बिकॉज ये एक डिफ़िकल्ट मीडियम लग रहा था, पर अभी धीरे धीरे करके एक एक्सेप्टेबिलिटी भी आ गई है और न्यू जनरेशन उसको स्वीकार भी करती जा रही है। तो आप बताइए अंकुर, आप साथ में, आपके साथ स्टूडेंट्स भी हैं, सब लोग हैं, हाउ इट्स गोइंग ऑन फॉर ऑनलाइन क्लासेस? हाँ, देखिए ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा है कि जब ये कोविड के पहले एक जो जी बहुत था कि ई एजुकेशन विल बी द फ्यूचर, ऑनलाइन एजुकेशन विल बी द जी फ्यूचर। जी सो लोग पिछले कुछ महीने में अडॉप्ट तो कर लिया उसको, और लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई जब बोलते हैं ना कि कोई रास्ता नहीं बचता है, तो नहीं, जो जैसा अवेलेबल है, जितना जो पॉसिबल है अवेलेबल है वो सब उसको आप करते ही हैं। यूज़ कीजिए। जी सो हाँ, जी हाँ। ऑलमोस्ट स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी, सभी ने उसको अडॉप्ट किया है। टीचर्स हैं वो भी सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी सीख रहे हैं इस मीडियम के थ्रू इंटरेक्ट करना। लेकिन एक बहुत इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि पहले बहुत सारे लोग कि ई एजुकेशन इज द फ्यूचर, ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, तो उसको लेके जब तक टेक्नोलॉजी यूज करी नहीं थी तो उसको लेके एक बहुत हाइप क्रिएटेड था परेशानी कि ये सब कुछ कर हुई। सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो पिछले कुछ 5-6 महीने में लोगों ने यूज करके उसको देख लिया, समझ लिया कि ये कोई ऐसी बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है कि जो दुनिया बदल दे या इस तरह का कर दे। और लोगों को अब ये अपने आप रियलाइजेशन होने लगा है कि क्लासरूम टीचिंग, जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं लर्निंग की, 1-to-1 टीचिंग, जो हमारा इंटरैक्टिव मॉडल था, वही सही था। ये लोगों को, टीचर्स, एजुकेट स्टूडेंट्स को रियलाइज होने लगा। सो वरना उसके बिना बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि बस हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्यूचर, इज द फ्यूचर। क्लासरूम को लोग डिस्कार्ड करने लगे थे, क्लासरूम लर्निंग को, और लोगों को लगता था कि ये कोई मतलब अब तो सब ऑनलाइन हो रहा ज़रूरत है, ही नहीं आप स्मार्ट बोर्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं, आप ये कैमरा क्यों नहीं लगा देते। अब वो सब जो दिमाग में ऐसे वो अधिकतर वो लोग थे जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल समझ नहीं थी, वही लोग इसकी ज्यादा पैरवी करते थे। अब उन लोगों ने ये सब चला के देख लिया, खिलौने, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो खिलौने की जिद करता रहता है, उसके हाथ में एक बार दे दो तो फिर वो भूल भाल जाता है थोड़े समय में। अब वैसा ही हो गया है, लोगों ने देख लिया कि ये सब तंत्र जो है, ठीक है, एक इमरजेंसी डिवाइसेस हैं, एड ऑन फीचर हो सकता है हमारी लर्निंग में, जो एक वर्ड यूज होता है ब्लेंडेड लर्निंग, कि ठीक है कुछ चीजें समझाने के लिए कभी स्मार्ट बोर्ड की मदद ले दी, कभी कौन सी चीज की मदद ले ली। तो लोगों को एक ये अच्छा इसी बहाने रियलाइजेशन हो गया, अब लोगों को क्लासरूम टीचिंग की और ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी, ये समझ सब रहे हैं। चीज़ें नॉर्मलाइज होगी। और एक इसमें खास बात है जो बहुत बार डिस्कोर्स में आती नहीं है, आप देखें कि जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जो लार्ज टेक्नोलॉजी जायंट्स जिनको कहा जाता है, क्या ये लोग अपने बच्चों को गजेट्स और इन चीज़ों का एक्सपोज़र देते हैं? क्या ये अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के पास ले जाने? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट पे कोई भी जाके सर्च करें, तो ये लोग अपने ही फैमिली का और अपने ही बच्चों का टेक्नोलॉजी का एक्सपोज़र हमेशा मिनिमाइज़ करके रखते हैं। जी, और सही वो बात। खुद कहते हैं वो कि सुंदर पिचाई ने तो एक बार कहा भी था, आई वांट टू कीप माय होम सिंपल। स्टीव जॉब्स ने भी कहा है, और ये माइकल बिल गेट्स हैं, इन्होंने भी कहा है, और हाँ, एक हाँ, एक रुडोल्फ स्टाइनर स्कूल है जहाँ पे इनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। सो बिकॉज़ पॉइंट ये है कि दे नो दिस मीडियम हैज़ अ लिमिटेशन, और वो बात एक मासेस में अब लोगों को समझ में आ गई कि दिस इज़ अ मीडियम, वन ऑफ द मीडियम, एंड इट हैज़ लॉट ऑफ लिमिटेशंस।
सो ऐसे कोई सिचुएशन हो गई, लॉकडाउन हो गई, प्रॉब्लम हो गई, किसी कारणवश बंद हो जाता है और आगे भी आने वाले देन समय इट्स में एन कई बार ऑप्शनल हमने थिंग, देखा यस, था जी कि हाँ, कहीं जी हाँ, पर अब जैसे कर्फ्यू लग जाते हैं तो कई बार बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है, किसी कारणवश बाढ़ और इस तरह की चीजें आ जाती है जिस कारण स्कूल yeah, कॉलेजेस बंद होते हैं। तो फ्यूचर में वो ऐसे समय लर्निंग रुकेगी नहीं, उसके लिए एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म का ये इस्टेब्लिश हो गया। डेवलपमेंट, जी हाँ, लेकिन रियलाइजेशन भी हो गई कि अब क्लासरूम की इम्पोर्टेंस है। एक रेसिडेंशियल कैंपस जो हमारा ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम था, जहाँ पे टीचर के कैंपस में सानिध्य में जाके बच्चे सीखते थे, पढ़ते थे, वो एक एजुकेशन का होलिस्टिक एक्सपीरियंस अब और ज़्यादा लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोनों ही तरफ से बेनिफिट है इसमें। जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू अंकुर फॉर हाइलाइटिंग दिस पॉइंट एंड कमिंग टू डॉक्टर अमित अबाउट द सेम, आप कुछ इस विषय में बोलेंगे क्योंकि आपने भी देखिए ये चीज़ अपनी पॉलिसी हाँ, में रखी। जी 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 जी। देखिए, पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन कहीं पर भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन को रिप्लेस करने वाली नहीं है। ओके, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ही ऑनलाइन एक एड की तरह काम करेगा। एक एक्स्ट्रा ये एडवांटेज सिर्फ है एक माध्यम ऑनलाइन रहेगा, एजुकेशन। ओके, लाइक एक माध्यम रहेगा, एक एडवांटेज रहेगा, जो चीजें सीधी तरीके से नहीं सिखाई जा सकती उसके लिए ऑनलाइन तरीके से सिखाई जाएगी। या डिस्टेंस एजुकेशन जो स्टूडेंट ले रहे हैं उनको थोड़ा सा और सहूलियत हो, केवल कोर्स मटेरियल ना हो, उनके साथ कुछ ऑनलाइन ऐड भी उनको मिल सके, उनके लिए भी उनका उपयोग होगा। तो इसके भी अपने लाभ हैं और उन सभी लाभों को लिया जाएगा। तो जी एजुकेशन पॉलिसी कहीं पे भी ऑनलाइन एजुकेशन को रिप्लेस, ऑनलाइन एजुकेशन से मेन स्ट्रीम एजुकेशन को रिप्लेस करने की बात नहीं कर रही है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑनलाइन का होना चाहिए, ओके, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जहां जहां उसकी जरूरत है वहां हम यूज करेंगे। दूसरा, जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो टीचर्स सेंट्रिक आई है। जी टीचर की जो टीचर का सम्मान है उसका इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। टीचर की खुद की ग्रोथ हो उसके ऊपर पूरा ध्यान रखा गया है। तो टीचर एजुकेशन सिस्टम के सेंटर में होगा। एजुकेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा, टीचर विल बी सेंटर ऑफ दैट। टीचर को अपनी गरिमा फिर से मिलने वाली है, जो कि कई सालों में छीन ली गई है। जी हाँ, जी हाँ। तो एंड टीचर का सर इसमें रिप्लेसमेंट ऑनलाइन से होने वाला है। और स्किल डेवलपमेंट जो बट होना है वो तो हाँ, बस वही आ, मैं हाँ, स्किल स्किल डेवलपमेंट जो होना डेवलपमेंट, है, हार्ड स्किल सिखानी है, वो तो गुरु के पास ही सीखनी पड़ेगी। वो तो केवल ऑनलाइन बैठकर आप खाना पकाना सीख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो आपको जी अगर कुछ हार्ड स्किल सीखनी है तो उसके लिए तो आपको टीचर के पास जाना ही पड़ेगा। जी। यस, बट सर ये इसकी सारी ऑनलाइन भी, ये भी आपने क्लियर किया है, अंकुर ने भी अपनी राय रखी है इसमें और आपसे क्लैरिटी मिली है। अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं ओवरऑल, ये जो पॉलिसी आई है, ये एक जैसे 12th के बाद में हायर एजुकेशन के लिए सब कुछ होता है, तो आर वी मेकिंग एनीवन लाइक जो भी यंग लड़का या लड़की खड़े होते हैं उनके अंदर कितने स्किल्स को डेवलप करने की ये पॉलिसी वो देती है, कन्विक्शन के साथ प्रॉमिस देती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि किस तरह का एक कहना चाहिए कि कैसा लड़का या लड़की बन के आएंगे अगर वो 12th तक एक हमारी नई पॉलिसी के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो उनके अंदर एक क्या शब्द में कहूँ नई तो चीजें। कहूंगा आत्मनिर्भर। एक शब्द में कहना है तो कहूंगा आत्मनिर्भर। केवल शब्दों से नहीं, उनके अंदर स्किल्स भी होगी, उनके अंदर कॉम्पिटेंसीज भी होंगी, उनके अंदर नॉलेज भी होगा, रेलेवेंट नॉलेज, और साइंटिफिक थिंकिंग उनका रहेगा। तो बहुत अच्छा इसके साथ होने वाला है। जनरेशन तो ये पॉलिसी सुधारेगी अगर ठीक से एंड इम्प्लीमेंट की जाए। अमित जी, इसमें टीचर्स की अगर बात करें तो हाँ। देयर आर एनी अपॉर्चुनिटीज जो हम्म। रिक्रूटमेंट्स अगर अगले साल में होने वाले हैं, ऐसा कुछ लोगों को होपफुल होना चाहिए कि क्योंकि इतनी सारी ओपन यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी, स्कूल्स ओपन होंगे, तो डेफिनेटली रिक्रूटमेंट का भी आई थिंक गवर्नमेंट लेवल पर भी आना चाहिए अपॉर्चुनिटीज। हम्म। हम्म। तो जैसे जैसे होगा गवर्नमेंट अपने एक्शन लेगी, उसमें कोई दो राय जी, नहीं है। वो गवर्नमेंट को करना है उसमें तो। हाँ। प्राइवेट स्कूल्स तो आर स्टिल स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ कोविड, बहुत सारे स्कूल्स तो शट डाउन ही हो गए हैं और अनएम्प्लॉयबिलिटी वो अभी उनकी टेम्परेरी, बहुत दिस इज बड़ी टेम्परेरी फेज, दिस इज सारे टेम्परेरी फेज, प्राइवेट। दिस इज टेम्परेरी फेज। पॉलिसी बन रही है, आगे आने वाले 50 साल 100 साल को देखकर बन रही है। तो बिल्कुल, हाँ, वो कोविड आज है। 2040 का लक्ष्य उसमें लिखा था जो हमने पढ़ा था लास्ट क्वार्टर है 2040 को मानते हुए, और अगर पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए तो आने वाले 20 हाँ। साल लग जाएंगे।
So anyway, but that is also इम्प्लीमेंटेशन की something बात which अलग है, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जो आएगा उसका विजन भी देखना पड़ेगा ना। इम्प्लीमेंट हो गई, उसके बाद थोड़ी की दूसरी पॉलिसी आएगी, तो उसको आगे देखना पड़ेगा। 50 साल 60 साल तो हर पॉलिसी लेती है। जी, 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 जी। नहीं, पर इसके जो मेजर एस्पेक्ट्स थे वो हमने यहाँ कवर किए हैं और आपने बहुत सारे पॉइंट्स हाइलाइट किए। बिफोर आई क्लोज ऑन द टॉक, एनीथिंग यू वुड लाइक टू रैप अप, लाइक एनीथिंग, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट जो कि पॉलिसी को लेकर के हो, जो लोगों के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, वो बहुत सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं, पर अगर कुछ भी ऐसा हो जो आप अलग से हाईलाइट करना चाहें, वो आप प्लीज़ मेंशन कीजिए। डॉक्टर अमित। देखिए, पहले जो शिक्षा होती थी वो लर्नर सेंट्रिक होती थी, जी, अब लर्निंग सेंट्रिक होने वाली है। अब प्रोसेस पे ध्यान होगा, और प्रोसेस ठीक होगा तो आउटकम अपने आप अच्छा आएगा। तो पूरे प्रोसेस की बात इसके अंदर की गई है। दूसरा, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है और जिस तरह से पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश हो रही है, हालांकि कुछ मिल नहीं रहा, तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, कुछ लोग, एक कॉम्प्लेक्स होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो उन लोगों के लिए देश की जनता के सामने उनके लिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और जो यूरोसेंट्रिक आइडियोलॉजीज हैं उनको लेकर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। तो वो बड़ी विचित्र हालत में है, अभी सोचने समझने की हालत में नहीं है, लेकिन वो भी ठीक से विचार करेंगे, साइंटिफिक वे में ठीक से सोचना शुरू करेंगे, तो शायद वो भी साइंटिफिक बन पाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। वो एक फ़ियर ऑफ वो भी चल रहा है सभी लोगों के बीच में, एक पॉलिटिकल इसको भी बोला जा सकता है एंगल देके, हालाँकि दिस इज़ नॉट टू बी डिस्कस्ड हियर, बट स्टिल हाँ, दिस इज़ अबाउट कि हिंदू राष्ट्र और लिबरल नहीं होगा अगर इतना हिंदी और ये बातें हैं, इसको आप लॉजिक बताइए ना, इसके तो पीछे हाँ, कोई लॉजिक ले कहीं लिया। नहीं है, तो वो लॉजिक कहीं नहीं है। पॉलिटिसाइज़ हो जाएगा इस तरह से अभी बोलना तो, बट हाँ, हाँ, इस तरह लॉजिक की भी कहीं नहीं बातें है इन बातों में। you are there, so you know it, you are there in New Delhi, so you know all what's happening. तो बेसिकली उसी हिसाब से है शायद कि पॉलिटिकली भी एंगल्स इसको दिए जा रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी है सेंट्रल में, सो दैट्स व्हाई यू नो इतना हिंदी को नहीं, और वो एक पूरा देश, देखिए, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि देश की क्षमताओं को उन्हें समझना पड़ेगा। अब तक जिस तरह से देश को रखा गया, देश के बारे में सोचा गया, या देश को विदेशों के सामने प्रेजेंट किया गया, एक गरीब देश है, एक बहुत दुखी देश है, पिछड़ा देश है, और इस पिछड़ा देश, दुखी देश, इस तरह की चीजें दिखा दिखा कर एनजीओ के नाम पे विदेशों से फंडिंग लेते रहे, उनसे काम चलता रहा। अब वो सारा, अगर भारत को वो महान कहेंगे तो उनको दिक्कत होगी ना, थोड़ी सी रोजी रोटी की, तो वो भी एक समस्या आती है। तो पर इसमें वेरी नथिंग इज पॉलिटिकल, जनता की नीति है, जनता ने नीति बनाई है सरकार के सहयोग से, तो इसमें कोई बहुत बड़ा विरोध, नीति पे तो विरोध नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन पे तो बातें होंगी, होनी भी चाहिए। जी, तो खैर इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस डेफिनेटली, कोई भी सरकार ऊपर जो प्रोसेसेस पॉलिसी की होती है, इट टेक्स टाइम, वो तो टाइम तो पॉलिसी एक लगेगा। ब्रॉड आउटलाइन है, अब रूल्स बनेंगे, रेगुलेशंस बनेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनेगा, और सब चीजें जी, आएंगी। हायर एजुकेशन कमीशन अलग से बनना है, स्कूलों के लिए अलग से जी। बनने हैं, तो चीजें बहुत सारी होनी काफ़ी है। चरण, हाँ, काफ़ी चरणों में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, सो शुड नॉट बी लूजिंग होप आई थिंक, और लोगों को थोड़ा इसको ऑप्टिमिस्टिकली देखना चाहिए, खासतौर से पेरेंट्स को, और क्योंकि बहुत सारे सर इसमें प्रॉब्लम्स कि स्कूल्स कब ओपन होंगे और कब कॉलेजेस रीओपन होंगे, कब क्या होगा। अभी नीट और जी का जो पूरा मुद्दा चला है, उसको लेकर के भी आप अवेयर होंगे ही सही। सो नॉट, आई एम नॉट टेकिंग अप दैट पॉइंट बिकॉज दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, बट स्टिल। So thank you so much, Dr. Amit, for this. And Ankur, before we close on to this session, which was very insightful, आप लोगों से बात करके काफ़ी सारी insight मिली हैं। आपका क्या पूरे मैटर को लेकर के कहना है? If we talk about NEP जो 2020 है, उसको लेकर के, साथ ही में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म ला रहे हैं, नई पॉलिसी ला करके, मेजर रिफॉर्म है जिसको बोला जा सकता है, उसको लेकर के आप क्या, हाउ यू सम इट अप? सो सम अप करने के लिए कहें कि जो एजुकेशन का जो रियल पर्पस है, वो उस पॉलिसी का एसेंस है कि जो हमने शास्त्रों में सुना है, सा विद्या या विमुक्त है। सो एजुकेशन इज वन दैट लिबरेट्स। सो वो जो हमारे देश की एक गुरुकुल परंपरा है, वो और एक धर्म की बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी जाती है
ये तो अभ्युदय निश्रेय ससिद्धि सधर्म। तो जो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट हैं, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, जो हायर एवोकेशंस इन लाइफ हैं, वो सारे विद्या, धर्म, ज्ञान इन सब से पॉसिबल होते हैं। और एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट है, अब जैसे जो विवेकानंद जी का एक कोट था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन और डिविनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन। तो जैसे अमित जी ने अभी बताया है कि वो लर्निंग सेंट्रिक है, तो अब जो एजुकेशन पॉलिसी पे अगर कोई एक बार जाके उस 60 पेज का जो डॉक्यूमेंट है 66 पेज। उसको अगर देख लें, एक बार ठीक से पढ़ लें, तो वो ये अपने आप की एप्रीहेंशंस उसमें रहेंगे ही नहीं, क्योंकि एक वो बहुत ब्रॉडर, जैसे अमित जी ने कहा कि लाखों लोगों से कंसल्टेशन के बाद, सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद बनी है, सबके आइडियाज को उसमें इनकॉर्पोरेट करा गया है इन स्पिरिट। तो और उसमें ये बात भी लिखी हुई है कि इट इज इन दिस स्पिरिट दैट इट शुड बी टेकन अप। सो कोई निटी ग्रिटीज जो हैं, जैसे अमित जी ने अभी कहा कि उसको इम्प्लीमेंटेशन में तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर ही सकते हैं, लेकिन पॉलिसी के ब्रॉड होराइजन, उसका जो विजन है, अगर किसी को उससे तो डिसअलाइनमेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात है, नेशन के डेवलपमेंट की बात है। तो उसमें जनरली वो लोग वो अननेसेसरी का मतलब बिना पढ़े कई बार जो बोलते हैं कूद जाते हैं। जैसे बात कर देते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स में भी ऐसा ही होता है, लोग कह देते हैं कि रामायण में ऐसा लिखा है, उनसे पूछो कि आपने रामायण पढ़ी है, तो वो फिर बगले झांकने लग जाते हैं। ऐसे ही कोई अगर कि एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा लिखा है, तो आप उनसे पूछिए कि भाई कहाँ लिखा है, ये पॉइंट कहाँ लिखा है, उसके आगे पीछे के सेंटेंस, उसके कहीं बैकग्राउंड दिया होता है सेंटेंस का, उसके बाद कोई पॉइंट लिखा होता है, वो बैकग्राउंड को छोड़ के वो पॉइंट को पढ़ लेते हैं और अपना पॉइंट लग रहे, तो वो कंटेक्स्ट एक बार देख ले पॉलिसी का, तो ऐसे कंफ्यूजन का स्कोप बचेगा ही नहीं। इनफैक्ट वो खुद भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कुछ अच्छा करने के लिए। बिल्कुल हुआ सही। ही है ना, हर डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिवर्सिटी खोलनी है, ऐसा पॉलिसी कह रही है, इन्होंने हर हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी खोल ली, ऐसा करके हाँ, पब्लिक बिकॉज परसेप्शन क्रिएट ये करने की कोशिश हर करी। दैट हफ्ते इज एक यूनिवर्सिटी खोली है, इस तरह से काफी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में आया है ये, बहुत अच्छे अच्छे एडिटर्स ने लिखा था। हर डिस्ट्रिक्ट को 10 साल में एक बिल्कुल। यूनिवर्सिटी खोलनी है। दैट इज फिजिबल, दैट इज फिजिबल। हाँ, यू हैव एक्सप्लेन्ड इट आल्सो मैथमेटिकली कैसे हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एंड इसमें एक बस फियर लोगों को, जैसे मैंने बोला कि लोगों को ये है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाली जो बात है, वो गवर्नमेंट जो है वो फोर्स कर रही है, सैक्रेनाइज कर रहे हैं पूरा कंट्री को अलग अलग तरीक़ों से, और ये पॉलिसी भी यही पैटर्नाइज कर रही है कि हाँ, मतलब हिंदू संस्कृति, हिंदू बातें और उन चीज़ों को इम्पोज किया जाएगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश बात और ये होनी काफ़ी। चाहिए, देखिए बात होनी चाहिए समरसता की, बात होनी चाहिए कर्तव्य की, बात होनी चाहिए साइंटिफिक अप्रोच की, जी। और ये सभी बातें इसके अंदर है। अब इसे कोई कहे कि ये हिंदू फिलोसफी है, तो वी आर वी विल Ready to वेलकम देम, accept. वी विल Yes, वेलकम देम। बिल्कुल। एंड इवन वी आर ऑफ दिस थिंग दैट यस ऑफ कोर्स, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, ये साइंटिफिक होने वाली बात है और ये रियलाइजेशन की बात है जो इतने समय से रिलेशन की नहीं बात, हुआ स्किल था, वो अब डेवलपमेंट की बात है। रिफॉर्म हो रहा है सब कुछ। सो दिस इज अ वेलकम चेंज एंड वी शुड अपनी भाषा का एक्सेप्ट सम्मान इट। करना, अपने विद्यार्थियों की स्किल्स को डेवलप करना, उनका जो उनकी नैतिकता में वृद्धि करना, और उनको क्या कहेंगे उसको, इंटीग्रेटिव बनाना, सबके साथ वो जुड़ के रह सके ऐसा बनाना, ये तो होना ही चाहिए। अब उसको आप चाहे जो नाम दीजिए। बिल्कुल सही है। और यू फाइनली व्हेन वी कम टू क्लोजिंग दिस वाज वेरी इंसाइटफुल, बहुत ही आपने अंदर से ये सारी चीज़ें हमें बहुत एक्सप्लेन करी अच्छे से, थैंक यू फॉर दैट। एंड योर मैसेज टू ऑल आवर व्यूअर्स बिफोर वी क्लोज ऑन टू दिस सेशन, Dr. Amit, and to Ankur also. So, firstly, with Dr. Amit, if you can share your message, personal message to all the viewers, parents, women who are watching this, who are going to watch this. So, एक्सक्यूज मी, आवाज नहीं है आपकी, पर रिपीट करेंगे? आपका आप अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? Can you अब just आ tell गई, me? अब आ गई, जी अब हाँ, आ गई, आई एम आस्किंग। अब आ जी गई। हाँ सर। तो आपका मैसेज जो हमारी सारे व्यूअर्स को जाए आपकी तरफ से, बीइंग द रोल यू हैव प्लेड अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉलिसी, सो आप सब लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आपकी तरफ से, एक मैसेज जो हो सारे व्यूअर्स के लिए?
This is the policy of people of India, people of Bharat. It is well discussed in every spectrum of in our country. तो जिस तरह से सभी के सहयोग से ये नीति बनी है, उसी तरह से सभी के सहयोग से ये लागू भी होगी और भारत का भविष्य बहुत अच्छा होगा, ऐसा ये नीति सुनिश्चित करती है। थैंक यू डॉक्टर अमित, एंड इट वाज रियली वंडरफुल। आपने ज्वाइन किया, आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स इस प्लेटफॉर्म पर बताए, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड अंकुर, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स, जो हमारे दर्शक भी हैं और जो फॉलोअर्स हैं और जो इसको देखने वाले हैं प्रोग्राम को? तो अगर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कहना हो, समझना हो, तो कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा एक खाली पेज लेकर बैठ जाए और विद्या क्या है, कैसी होनी चाहिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अगर वो ओपन माइंड से, अगर एक खुले विचारों से उसको कागज पे लिखेंगे, तो वो खुद भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही उसको मिलेगा कि वो दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। तो ये एक नेचुरल पॉलिसी है, जैसे अमित जी ने कहा कि सब भारत के लोगों की पॉलिसी है। सो इट इज जो नेचुरल अभिव्यक्ति, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है लोगों की, जो जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो अगर किसी को लगे कि इसमें क्या है, तो वो एक खाली कागज पे लिख के विद्या क्या है, शिक्षा क्या है, इसका आंसर लिखना शुरू कर दें, तो वो भी इसी तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देंगे। दैट्स वेरी बहुत आपसे प्रेरणा प्राप्त हुई है सारी बातें करके, और काफ़ी एक नया आउटलुक मिला है, क्योंकि बहुत सारे जिसको बोलते हैं ना कि कोई एक चीज़ आती है और उसको लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं, गलतफहमियाँ एक के बाद दूसरी, कोई लोग रीड नहीं कर पाते ठीक से बातों को, फिर चर्चाओं से चर्चाएं पहुंचती हैं और वर्ड ऑफ माउथ पूरा आजकल सोशल मीडिया से बहुत जल्दी पहुंचता है। सो उस वजह से इट वाज रिक्वायर्ड टू एक्चुअली आप लोग जैसे लोग जो है एजुकेशनिस्ट हैं और एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं, उनसे राय ली जाए, उनसे चर्चा की जाए। एंड आई होप कि इस कैंपेन में आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहेगा और भी चर्चा करेंगे आपसे और नए मुद्दों पर भी बात करेंगे। एजुकेशन पॉलिसी को आज हमने कुछ हाईलाइट कर पाए इस पूरी चर्चा के दौरान। सो थैंक यू अमित जी, डॉक्टर अमित, फॉर जॉइनिंग मी फ्रॉम न्यू दिल्ली, एंड थैंक यू अंकुर Joshi as well for joining me from Banasthali Vidyapeeth. So it was really wonderful talking to you, and आपने बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजें explain की. So thank you so much. Thank you. Thank you. Namaskar. Thank you. So everyone, that was Ankur Joshi and Dr. Amit Dashura who had explained बहुत सारी बातें जो हम और आप उस नज़रिए से नहीं समझ पाते, जितना कि इन लोगों की एक इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज़ था इसमें, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ वॉच द वीडियो सिंस बिगिनिंग, और आपको खुद बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जो मिथ्स होंगे या जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, वो उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ही विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया है एक एक पॉइंट्स को। वो टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, यंग जनरेशन के लिए भी है, और आने वाले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के भी है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड कीप फॉलोइंग अस ऑन नेशन टॉक्स। देयर विल बी मोर एक्सपर्ट्स एंड स्पीकर्स जो हमें ज्वाइन करेंगे इस पूरे 15 दिन के कैंपेन में। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।